Hello everyone. In our previous video, we have studied about sexual reproduction in plants, and today we are going to study about reproduction in human beings. Human beings reproduce by sexual method after attaining puberty. And now you must be thinking, what is puberty? So puberty, it is the period of sexual maturity during adolescence when reproductive organs become functional. देखिए puberty एक ऐसा पीरियड है एडोलेसेंस में जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में. फॉर एग्जाम्पल, गोनेट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स एंड द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर. देखिए जैसे गोनेट्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरी, सो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड सेक्स हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. और बॉयज़ और गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर होते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाट इज एडोलेसेंस? सो एडोलेसेंस, इट इज़ द ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. ये एक ट्रांजिशनल फेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, जिसमें एक चाइल्ड अडल्टहुड गेन करता है. एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इट डिफाइंस एन एडोलेसेंट. मीन्स एडोलेसेंट कौन होते हैं? Adolescent is any person between age 10 and 19. जो 10 से 19 ईयर्स के बीच के जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनको हम adolescent बोलते हैं. And generally boys attain puberty at the age of 13 to 16 years and girls reach puberty at the age of 10 to 14 years. देखिए बॉयज़ जो हैं ये प्यूबर्टी अटेन करते हैं 13 से 16 ईयर्स के बीच में, और गर्ल्स they reach puberty at the age of 10 to 14 years. And now we will study about primary and secondary sexual characters. See, primary sexual characters are those characters which are present since birth, जो कि एक child में by birth उसमें present होते हैं. And whereas secondary sexual characters, they develop at puberty. Means secondary sexual characters वो characters होते हैं जो कि puberty में develop होते हैं. And in boys and girls, certain changes takes place during puberty, and these changes are the signal of sexual maturation. Boys और girls में certain changes होते हैं puberty के दौरान, और ये changes ही वो signal है जिनसे हमें पता चलता है yes, they are now sexually mature. And now first we will study about common changes in both boys and girls. Girls और boys में common changes. So first common change, thick hair growth in armpits and genital area between the thigh. And second common change is thinner hair appear on legs, arms and face. And third change is oily skin and appearance of pimples. These are common changes. And now we will study about specific changes in boys and girls. So first of all, we will study specific changes in boys during puberty. So in boys, thick facial hair growth. And second change, their voice begins to crack. And third change is penis occasionally begins to become enlarged and erect. So these are the three specific changes which occur during puberty in boys. Now specific changes in girls which occur during puberty. So first change is their breast size begins to increase, and second, darkening of nipple skin, and third is start of menstruation. So these are the specific changes which occur in girls during puberty. And in boys, puberty is induced by the secretion of hormone testosterone secreted by testes. Boys में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी में डेवलप होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं जो कि टेस्टिस सिक्रीट करता है. एंड इन गर्ल्स, प्यूबर्टी इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी. और गर्ल्स में प्यूबर्टी इंड्यूस होती है एस्ट्रोजन हार्मोन से, जो कि ओवरी सिक्रीट करती हैं. सो जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी is a slow process. The changes that take place at puberty
are a slow process which may take months to years. सेक्सुअल मैच्योरिटी एक स्लो प्रोसेस है और जो चेंजेस प्यूबर्टी में होते हैं ये स्लो प्रोसेस में होते हैं एंड इसमें महीनों से साल भी लग सकते हैं. एंड दीज चेंजेस डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम in one person nor do they happen at an exact age in all the persons. देखिए ये जो चेंजेस हैं ये एक साथ ही सारे चेंजेस नहीं होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों में चेंजेस एक सर्टेन एज में हो, एक फिक्स्ड एज में हो. इन सम दे हैपन अर्ली एंड क्विकली while in others they can happen very slowly. कुछ लोगों में ये चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ में बहुत धीरे धीरे होते हैं. And sexually mature male or female can produce gametes. The male produces sperm and female produces eggs or ovum. Male sperm produce करते हैं male gamete और female egg produce करती हैं या फिर ovum female gamete. And when the sperm fuses with the egg, then the developed organism is known as offspring. और जब sperm egg से fuse होता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप होकर के एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. एंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट एंड दिस इंक्लूड पेनिस इन मेल्स एंड वेजाइना इन फीमेल्स. एंड द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So what is reproductive system? It is the system of organs required for the process of sexual reproduction. Now let's study about the male reproductive system. As you can see in the diagram, male reproductive system consists of different parts like testes, scrotum, vas deferens, urethra, prostate gland and seminal vesicles, penis. And first of all we will study about testes. Testes are primary sex organs of males and these are one pair and oval shaped. देखिए testes primary sex organs हैं males में. They consist of seminiferous tubules where the sperms are produced. और ये एक पेयर होते हैं और ओवल शेप्ड होते हैं और इसमें seminiferous tubules होती हैं जिसमें sperms produce होते हैं. And testes produce male sex hormone called testosterone, which brings about changes in appearance of boys at puberty. और testes मेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन जिससे बॉयज़ में प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं. एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज स्क्रोटम. स्क्रोटम दीज आर स्मॉल पाउच दैट कंटेन टेस्टिस. दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. देखिए स्क्रोटम स्मॉल पाउच होते हैं जिसमें टेस्टिस होते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं मीन्स आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. एज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर दिस रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. और इनका टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम होता है जो कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए सूटेबल टेम्परेचर है. इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं. And next part is vas deferens. Vas deferens, it is a tube-like structure which connect testis to the urethra in order to allow the passage of semen. देखिए vas deferens एक tube-like structure है जो कि testis को urethra से connect करती है और एक passage भी provide करती है for the movement of sperms. And our next part is urethra. Urethra, it is a common passage for both the sperms and urine. यूरेथ्रा स्पर्म्स और यूरिन के लिए दोनों के लिए कॉमन पैसेज है एंड इट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी ग्लैंड्स. सो अलॉन्ग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स दे ऑल्सो एट देयर सिक्रीशंस. देखिए वास डिफरेंस में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स इन दोनों का ही सिक्रीशन भी मिक्स होता है. एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स अ मिल्की फ्लूइड विच हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स. और प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि स्पर्म्स को मूवमेंट में हेल्प करता है. एंड सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस फ्लूइड विच हेल्प स्पर्म्स टू मूव फॉरवर्ड
into the fallopian tubes of female, and this fluid also provide nourishment to the sperms. और जो सेमिनल वेसिकल है ये एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि स्पर्म्स को हेल्प करता है फेलोपियन ट्यूब में मूवमेंट में, और ये जो फ्लूइड सिक्रीट करती है ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को. एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पेनिस. पेनिस इट इज एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन एंड इट ट्रांसफर्स स्पर्म्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल. मेल्स में पेनिस एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है. And now let's study about sperms. Sperms are male gametes. देखिए sperms male gamete होते हैं and they are tiny bodies formed in seminiferous tubules in large number. देखिए sperms male gamete होते हैं और ये बहुत ही tiny body है जो कि seminiferous tubules form करती हैं जो कि testis में होती हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में. And a sperm contains mainly genetic material. और sperms में mainly genetic material होता है. And it has a long tail that help it to move towards the female germ cells. देखिए स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है और स्पर्म में हमेशा 23 क्रोमोसोम्स होंगे. जो कि ह्यूमन जीनोम है उसमें 23 पेयर होते हैं, लेकिन जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है इनमें 23 होंगे, तभी ये फ्यूज होकर के 23 पेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए. एंड इसमें एक लॉन्ग टेल होती है जो कि इसको हेल्प करती है मूवमेंट में, ताकि इजीली ये फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंच जाए. एंड नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सीमेन. दैट व्हाट इज सीमेन? सी इट इज द मिक्सचर ऑफ मैच्योर स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स. सीमेन मैच्योर स्पर्म्स और जो एसेसरी ग्लैंड्स है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ये जो फ्लूइड सिक्रीट करती हैं उनका मिक्सचर है. एंड सीमेन इज अ मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड. देखिए सीमेन milky alkaline fluid. Alkaline fluid means which is basic in nature, that contains sugars, proteins and chemicals for nourishment and mobility of sperms. देखिए इसमें प्रोटीन्स, शुगर्स और केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सो दिस इज सीमेन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, female reproductive system consists of different parts, and these parts are ovaries, oviduct और fallopian tube. Oviduct को हम fallopian tubes भी बोलते हैं. Uterus, vagina and cervix. So first of all we will study about ovaries. See ovaries, a pair of ovaries located one on either side of the uterus. Uterus के दोनों साइड एक एक ओवरीज प्रेजेंट होती हैं एंड दे प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल्स और ओवा एंड सिक्रीट द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये फीमेल जर्म सेल्स ओवा प्रोड्यूस करती हैं और साथ ही साथ ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. अबाउट एस्ट्रोजन वी हैव स्टडीड दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल and it also helps to regulate the menstrual cycle. देखिए एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है. एंड प्रोजेस्टेरॉन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, और प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट. ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स. फेलोपियन ट्यूब्स आर पेयर्ड tubes originating from uterus, one on either side of it. देखिए ये एक पेयर ट्यूब्स होती हैं जो कि यूट्रस से ओरिजिनेट होती हैं एंड फेलोपियन ट्यूब्स एक्सटेंडेड अप टू द ओवरी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड, और ये ओवरीज तक एक्सटेंडेड होती हैं. एंड दे हैव अ फनल शेप स्ट्रक्चर नियर द ओवरी, और ओवरी के पास इनमें फनल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. एंड दे कैरी ओवा और एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, और ये ओवा कैरी करती हैं ओवरीज से यूट्रस तक. सो इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड यू नो फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस इन fallopian tubes. Fusion of gametes, male gamete and female gamete, it takes place in fallopian tubes, and they open into uterus from both the sides. और ये दोनों साइड से दोनों fallopian tubes यूट्रस में ओपन होती हैं. And now next part is uterus. Uterus, it is a pear-shaped, highly muscular bag-like structure. In uterus, growth
and development of fetus takes place. Hence it is also called womb. देखिए यूट्रस पियर शेप्ड और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है और जिसमें फीटस डेवलप होता है. फीटस देखिए सबसे पहले जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इट डेवलप्स आफ्टर 10 weeks इट इज कॉल्ड फीटस. दैट इज वाई uterus it is also called womb because development and growth of fetus takes place here. And the narrow lower part of the uterus it is called cervix which leads into the vagina. Now next part is vagina. Vagina it is a short white and muscular tube and it receives the sperms from the male partner and it serves as a birth canal. So this is the structure of female reproductive system. Now let's study about fertilization. Fertilization is the fusion of sperm and ovum. देखिए sperm means male gamete और ovum female gamete. तो sperm और ovum का fusion इसको हम बोलते हैं fertilization. And fertilization takes place in oviduct और fallopian tube. और fertilization fallopian tubes में होता है. And the fertilized egg called zygote. देखिए egg when it is fused with sperms, so it is called zygote. And zygote it divides several times to form an embryo. और zygote continuously divide होता रहता है और ये embryo form करता है. And now the embryo sinks down and reaches into the soft and thick lining of the uterus. और फिर embryo fallopian tube से होता हुआ uterus में आ जाता है और जो uterus की thick और soft lining होती है उसमें embedded हो जाता है. And the embedding of the embryo in the thick lining of the uterus is called implantation. और जब embryo uterus की thick lining में embedded हो जाता है तो उसको इस process को हम बोलते हैं implantation. And uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. और uterus every month अपने आप को prepare करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए और उसको नर्चर करने के लिए. एंड द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. और जो यूट्रस की लाइनिंग है ये और थिक हो जाती है और इसमें ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिल सके. एंड द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. और जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से एक स्पेशल टिश्यू की हेल्प से जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा इट इज़ अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्राइन वॉल ऑफ मदर, जो कि एम्ब्रियो को मदर की यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करता है. सो प्लेसेंटा इट इज़ अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल. प्लेसेंटा एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि यूट्राइन वॉल से में एम्बेडेड होता है एंड इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. देखिए इसमें एज यू कैन सी इन द डायग्राम विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि एम्ब्रियो साइड को हैं. विलाई जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया. एंड ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड्स द विलाई. और मदर साइड में यू कैन सी ब्लड स्पेस है जो कि विलाई को सराउंड करते हैं, उसके चारों ओर होते हैं. एंड दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो. और इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में मीन्स मदर के ब्लड से एम्ब्रियो में ईजीली ट्रांसफ़र होते हैं. So placenta it helps in providing nutrition to the embryo, to the developing embryo, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र भी प्लेसेंटा की हेल्प से होता है. एंड यू नो डेवलपिंग एम्ब्रियो इट ऑल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेस और इन वेस्ट सब्सटेंसेस का रिमूवल भी प्लेसेंटा से होता है. एंड दीज वेस्ट सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड by transferring them into the mother's blood through the placenta. और ये भी प्लेसेंटा के थ्रू ही जो फीटस जनरेट करता है वो मदर के ब्लड में पहुंचते हैं. एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months. और चाइल्ड जो है इसका डेवलपमेंट मदर की बॉडी में 9 months तक होता है. एंड द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस.